Welcome to Natak's 51st production. We have staged 50 productions over 20 years. For our 51st, we have gathered 9 of the best short plays from around the world and put them together in a grand show in 9 languages with subtitles in English. We will present these plays in quick succession. Each is about 20 minutes long. Please excuse the length of the play. India has over 200 languages, we only pick 9. There will be a 15-minute intermission at the end of the 5th play. There will be time samosas available in the lobby at that time. If you happen to leave the theater in the middle of a play, ushers will ask you to wait till the end of that play to return to your seat. Please take a moment to silence your cell phone. Flash photography is prohibited. Natak presents Well, here we are. Here we are, aren't we? Yeah, I should say we are. Here we are. Well, How does it feel to be an old man lady now? it's too soon to ask me that. I mean, we've only been married for 3 hours, haven't we? Yeah, we've been married for exactly 2 hours and 26 minutes, sweetheart. Oh, feels like much longer. No, it isn't hardly 6:30 yet. It feels like much later. I guess it's because it starts getting dark so early. It does at that. Well, actually, nights are going to be pretty long from now on. Well, it starts getting dark early. I sort of didn't have any idea what time it was. Boy, everything's so mixed up. I sort of don't know where we are and what it's all about. Getting back from City Hall, and then all those people, and then changing all my clothes, and everybody throwing things around. Oh, goodness. How do people do this every day? Do what? Get married. When you think of all those people, all over the world, getting married just as if it was nothing. Just as if it wasn't anything. Well, let's not worry about people all over the world. We've got something better to think about, right? Why do we care about that? Oh, I know. Only, I got to thinking of them. All of them. And I just don't understand how they just keep doing it all. At least, getting married, and it's sort of such a big thing to do. It makes you feel weird. You think of them, all of them just doing it like it wasn't anything. How does anybody know what's going to happen next? Actually, let them worry. We don't have to worry about them. And we know darn well what's going to happen next. We know it's going to be great. And we know, we're going to be happy, aren't we? Oh, of course. Only you think of them. And you sort of have to keep on thinking. It makes you feel funny. An awful lot of people that get married doesn't turn out so well. And I guess they must have thought it was going to be great. Come on, Annie. There's no way to start a honeymoon. Just look at us. All married, everything done. The wedding all done and all. It was nice, wasn't it? Did you really like my outfit? Oh, I loved it. You look great. I'm terribly glad. Didn't Ishani and Meena look lovely? I'm terribly glad they finally decided on that pink. They look perfectly lovely. Hey, listen, I wanted to tell you something. When I was standing up there in the city hall waiting for you, and I saw those 2 friends of yours, I thought to myself, wow, I never knew Nina could look like that. She could have knocked anybody's eye out. Oh. Really? Funny. Of course, everybody thought her dress and shoes were lovely. But a lot of people seem to think she looks sort of tired. Actually, people have been saying that quite a lot lately. Of course, I tell them it's awfully mean of them to go around saying that about her. They've got to remember she's not terribly young anymore. Nina can say she's 23 all she wants, but she's a good deal nearer 27. Well, she was certainly a knockout at the wedding. Boy. Yeah. Well, I'm glad you thought so. I'm glad somebody did. How did Ishani look? Why? I honestly didn't get a good look at her. Oh, really?
honey, come on. I mean, what is all this? I mean, what is all this talk about not wanting your family around? Why? I mean, you know how I feel about your family. I think you're old lady. I mean, your mother. Your mother's swell. And Shani and your father. I mean, what is all this talk? Don't tell me, I've seen it happen. An awful lot of people, they get married and they think it's going to be great and everything, and things just fall to pieces because people don't like people's families or something. Don't tell me, I've seen it happen. No, honey, come on. What are you getting all angry about? What are you trying to start this for? Is it because of this car? Is it because you're too uncomfortable in this one? Come on, let's not ever fight. Please, will we? I'm sorry I was cross. I guess I did feel a little bit funny. It's just everything's so mixed up. And then me thinking of all those people everywhere and then being way off alone here with you. It's not such a big thing. It's not so different. You can't blame a person for thinking, can you? And yes, let's never ever fight again. We won't be like a whole lot of them, will we? We won't fight or be nasty or anything, will we? You bet we won't. We won't. Guess I better take this scarf off. It is uncomfortable. Will you put this away for me? Yeah. Do you like it? Looks good on you? No, I mean, do you actually like it? I will tell you. I know it's a new style and it's probably great. I don't know anything about things like these, but it's kind of not like, the other scarf. I mean, blue scarf you have? Jeez, I love that scarf. Oh, really? Oh, that's nice. Oh, that's lovely. The first thing you say to me when you get me alone, away from my family and friends, is that you don't like my scarf. The first thing you say to your wife is that she has a terrible taste in scarves. Oh, that's nice, isn't it? No, I never said this. What you don't realize is that scarf cost over $122. $122. And that horrible little thing that you think you're so crazy about, that cost only $35. No, I didn't give a damn of what it cost. I only said that I like the blue scarf. But I don't know anything about scarves. And I know I'll be crazy about this one as soon as I get used to it. Not like your other scarves you have. But what do I know about women's styles? What do I know about scarves? Well, why didn't you marry someone who gets the kind of scarves you need? You know, the $35 ones. Actually, why didn't you marry Nina? Oh. You always think Why didn't you marry her? I bet you love her tasting scarves. Oh, come on, for heaven's sake, No. Why didn't you marry her? What have you done? Ever since you sat on the street and talked about Nina? I have sat and I have listened to you say how wonderful Nina is. I suppose that's nice. Getting here all alone and then just raving about Nina right in front of my face. Why didn't you ask her to marry you? I mean, I bet she would have said yes. It's not like there's a lot of people asking her to marry them. Actually, why didn't you marry her? I'm sure you would have been more happier. Hey, come on, listen now. Hey, listen. Now that we're talking about things like that, why didn't you go and marry Joe Brooks? I suppose he could have given you all the $122 scarves you ever wanted. I suppose. But I'm not so sure. I'm not sorry I didn't. There, Joe Brooks would have never gotten me alone and then sneered at my taste in clothing. Joe Brooks would have never hurt my feelings. Joe Brooks is actually fond of me. Oh yeah, he's fond of you. He was so fond of you, he didn't even send you a wedding present. That's how fond of you he is. Well, I happen to know that he's away on business and that when he gets back, he'll buy me anything I want for our apartment. Hey, listen, I don't want anything he gives you in our apartment. Anything he gives you, I'm going to throw out that window. That's what I think of Joe Brooks. And by the way, how do you even know where he is and what's he going to do anyways? Has he been emailing you? Well, my friends can correspond with me, can't they? They haven't made a law against it. Well, they cannot, I suppose. Yeah, that's what I think of Joe Brooks. And I don't want my wife to be getting any emails from a cheap traveling salesman. Joe Brooks is not a cheap traveling salesman. He's not. He gets a perfectly wonderful salary. Oh yeah, and how do you know that? Because he told me so himself. Oh, he told you so himself. I see, he told you so himself. Well, you have a lot of right talking about
photos of her today on our wedding day. And you said so yourself. And all you could think about when you were standing in City Hall was Lena. In City Hall, in the city clerk's office, in front of everyone. And all you could think about was Lena? Listen, honey, I'm sorry. I'm really sorry. You know, I shouldn't have brought that up. You know, but how do you know? You know what kind of crazy things come to your mind when you're standing up there waiting to get married? You know, I'm sorry. But the only reason I ever brought her up was because I thought it was kind of crazy, and I thought it would make you laugh. I know. I've been all sorts of mixed up today, too. I told you that before. Everything's so strange and everything. And then me all the time thinking of all those people all over the world. And then being here alone with you and everything. I know it gets you all mixed up. Only when you kept talking about Lena, I felt you did it with malice and forethought. Oh, no. I never did it with malice or forethought. The only reason I brought Lena up was because I thought it would make you laugh. But it didn't. I know it didn't. Now, it certainly didn't. But honey, come on. We ought to be laughing more. This is our honeymoon. What's the matter? I don't know. I mean, we used to squabble a lot before when we were going together and then engaged and everything. I just thought things would be so sort of different once we got married. It just feels so strange. I feel so sort of alone. Sweetheart, don't worry. Things are going to be different afterwards. We haven't been married very long. Yeah, no. Actually, we haven't got much longer to wait now. We will be in New York pretty soon. And I was thinking maybe, we could order dinner in the room and sort of see what we wanted to do next, is there anything special you want to do tonight? Yeah, like what? I was thinking maybe we could go to some show or something. Yeah, sure, whatever. I sort of didn't think people went to the theater and things on their wedding. Well, I have some emails to write tonight. I simply must write them. Don't let me forget, huh? Oh, you have to write tonight. Yeah, what with all this excitement and everything, I never did a thing about that berry spoon that we're all on today. And I never did a thing about those bookends the Mullick sent us. I've just been terrible. I simply have to get those emails out tonight. And once you're done writing those emails, maybe I could get you a bag of popcorn or maybe a magazine. What? Why? I wouldn't want you to be bored. Bored? We're married, aren't we? As if I could be bored with you. I thought, I was thinking, once we got there, we could actually go to the Biltmore and just anyway leave our bags there and maybe order something in the room and do something quiet, I was thinking we could go to the Biltmore stage from the station. Okay. Yeah? Yes. Let's. I'm really glad we're staying at the Biltmore. I just love it there. The twice I've been to New York, Mom and Dad and Ishania and I, we've always stayed at the Biltmore, and I'm just crazy about it. I sleep so well there. I fall asleep the minute my head is Oh, you do? I guess it's because it's so quiet way up there. Well, actually, I was thinking maybe we could go to the show tomorrow instead of tonight. Don't you think that's better? I think it might be. And those emails, do you really have to write them tonight? Well, I don't suppose they'd get any quicker if I wrote them tomorrow. And you bet we won't ever fight, right, sweetheart? Oh, yes, don't let's ever fight again. I don't know what made me do like that. It all looked just so sort of funny. Sort of like a nightmare. Thinking about all those people getting married all the time. And then for so many of them, things just spoil the amount of fighting. I don't want to be like them. We won't be like them, will we? Sure we won't, sweetheart. We won't fight or be nasty or fall apart. It'll all be different now that we're married. It'll be lovely.
So glad. I would hate for you not to like my scarf. I don't know. I don't think it's such a bad start. No, I'm crazy for it. And for now that we have that settled, for heaven's sakes, and then we are almost in New York, and pretty soon we'll be regular old married couple. And see, we're almost, we're in the hotel, and we'll be, everything's gonna be fine. And just look at us. Here we are, married. Here we are. Yup. Here we are, aren't we? शुक्ला साहब, इससे पहले कि चीजों को इधर उधर करें, आप वकील साहब को ये बताइए कि कल सुबह जब आप यहाँ आए थे तब आपने यहाँ क्या देखा? वैसे कुछ भी इधर उधर किया गया है क्या? क्या चीजें वैसी हैं जैसे कल आपने छोड़ गए थे? सब कुछ पहले की तरह है। कल रात जब तापमान शून्य के नीचे गिर गया तो मैंने सोचा कि मैं फरदीप को हमारे यहाँ आने से पहले अलाव जलाने के लिए भेज दूँ। कोई फायदा नहीं अगर एक बड़े मुकदमे के साथ निमोनिया भी झेलना पड़े। लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि अलाव जलाने के सामान के अलावा वो और कुछ भी न छुए। और आप तो फरदीप को जानते ही हैं। अच्छा शुक्ला जी, यह बताइए कल सुबह जब आप यहाँ आए तब क्या क्या हुआ? हरी और मैं आलू की बोरियां लेकर सुबह शहर की ओर निकले। जब हम यहाँ तक पहुंचे तो मैंने कहा मैं देखता हूँ अगर जयदेव राठी को अपने साथ पार्टी टेलीफोन देने के लिए मना सकता हूँ तो। वैसे पहले भी मैंने एक बार उससे बात की थी पर तब उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि उसके घर जाकर उसकी पत्नी के सामने बात करूं तो शायद मान जाए। हालांकि मुझे ये पक्का पता नहीं था कि उसके पत्नी के कहने या चाहने पर उस पर कुछ फर्क पड़ेगा भी या नहीं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे शुक्ला साहब। अभी केवल इतना बताइए कल जब आप यहाँ घर पर आए तब क्या हुआ? मुझे कुछ खास ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। मैंने जब दरवाजे पर दस्तक दी तब भी भीतर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया तब मुझे ऐसा लगा जैसा किसी ने कहा हो भीतर आ जाइए। हाँ, मुझे पक्का याद नहीं लेकिन मैंने दरवाजा खोला, वो दरवाजा, और यहाँ रॉकिंग कुर्सी पर मिसेस राठी बैठी हुई। वो क्या कर रही थी? वो बस रॉकिंग कुर्सी पर बैठी झूल रही थी। उनके हाथ में एप्रन था और उसकी तहों से वो खेल रही थी। और उनकी अवस्था कैसी थी? वो कैसी दिख रही थी? वो बहुत अजीब सी दिख रही थी। अजीब से क्या मतलब है? जैसा कि उन्हें कुछ पता भी ना हो यहाँ क्या हुआ हो और वो अब क्या करने वाली है। बहुत थकी हुई लग रही। आपको क्या लगता है आपके यहाँ आने से उन पर कोई प्रभाव पड़ा? मुझे नहीं लगता उन्होंने मुझ पर ज्यादा ध्यान दिया। मैंने उनसे कहा कैसी है आप? ठंड है ना? वो बोली है क्या, और अपनी एप्रन की तहों से खेलती रही। मैंने कहा मैं जयदेव राठी से मिलना चाहता हूँ तो वो हंसने लगी और फिर शांत होकर सुस्त स्वर में बोली वो मर चुके हैं। मर गए? मैंने कहा। उन्होंने बस सर हिलाया और आगे पीछे झूला झूलती रही। मैंने कहा वो कहाँ है? उन्होंने बस ऊपर की तरफ इशारा किया इस तरह। तो मैं ऊपर जाने के लिए वहां से यहाँ तक आया। फिर मैंने सोचा उनकी मौत कैसे हुई? वो बोली उनकी मौत रस्सी का फंदा डालने से हुई। फिर अपनी एप्रन की तहों से खेलती रही। मैं बाहर गया और हरी को लेकर आया। हम दोनों ऊपर गए और देखा तो क्या, वो हम बड़े हुए थे। मुझे लगता है हमें यहाँ की बजाय ऊपर कमरे में जाकर बात करनी है जहाँ आप सब दिखा सकते हैं। फिलहाल आगे की कहानी जारी रखिए। शुक्ला जी, मैंने पहले सोचा उस रस्सी को निकालना चाहिए। तब हरी उनके मृत शरीर के पास गया और बोला ये तो मर चुके हैं, बेहतर ये है कि हम यहाँ कुछ भी न छुए। तो फिर हम वापस नीचे आए। तब भी वो वैसी की वैसी बैठी हुई थी। हरी ने थोड़े पेशेवर तरीके से पूछा ये सब किसने किया भाभी जी? उन्होंने अपनी एप्रन की तहों से खेलना बंद कर दिया और बोली
उठी ना नहीं, मैं बहुत गहरी नींद सोई। मैंने हरी से कहा, अरे ये सब कहानी उन्हें हमारी जगह उस पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को बतानी चाहिए या तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर को बतानी चाहिए। इसीलिए हरी जल्दी से रस्तोगी जी के घर गया और उसने वहां से फोन किया। और तब मिसेस राठी ने क्या किया जब उन्हें पता चला कि आप पुलिस के पास जा रहे थे? वो उस कुर्सी से इस कुर्सी पर आकर बैठी और बस बैठी है। मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ ये देखने के लिए आया था कि क्या जयदेव राठी अपने साथ पार्टी टेलीफोन, तो वो हंसने लगी जोर जोर से। फिर रुक गई और मुझे देखा डरते हुए। मुझे पक्का पता नहीं वो डर था या नहीं, उतने में हरी वापस आ गया और फिर डॉक्टर लाए और फिर आप इंस्पेक्टर पांडे, बस मुझे इतना ही पता। चलिए ऊपर चलते हैं, पहले फिर अनाथ घर और उसके आसपास का मुआयना करेंगे। आपको पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी ऐसा जो किसी मकसद की ओर इशारा करे? हाँ, यहाँ तो छोटी मोटी चीजों और इस रसोई घर के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत गंदगी है। उनके हर फंड में जम गए हैं। उन्हें बड़ी चिंता थी ठंड की, कह रही थी कि अलाव बुझ जाएगा और उनके वर्तमान टूट जाएंगे। वैसे औरत जात को समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ मिसेस राठी हत्या के लिए पकड़ी गई है और इन्हें फलों की चिंता हो रही है। हमारी जांच पड़ताल खत्म होने तक उन्हें इससे भी अधिक गंभीर विषय मिल जाएगा चिंता करने की। अरे औरतों की तो आदत होती है छोटी छोटी बातों पर चिंता करने। और फिर भी उनकी सारी चिंताओं के होते हुए भी हम क्या करेंगे औरतों के बिना? कंधे तौली। वैसे बड़ी अकुशल गृहिणी थी आपकी मिसेस राठी, आप लोग ऐसा मानती हैं कि नहीं? फार्म हाउस पर करने के लिए बहुत काम होता है। बेशक, फिर भी मैं जानता हूँ कुछ ऐसे फार्म हाउस जहाँ ऐसे मैले कुचेले तौलिए नहीं होते। तौलिए बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और आदमियों के हाथ भी उतने साफ नहीं होते जितने के होने चाहिए। ओह, मैं समझ गया, अपनी बिरादरी के प्रति वफादार। आप और मिसेस राठी पड़ोसी थे, संभव है दोस्त भी थे। मैं पिछले कुछ सालों से उनसे ज्यादा मिली नहीं। इस घर में आए हुए भी एक बार उत्पन्न हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? आप उन्हें पसंद नहीं करती? मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन जैसा मैं कह चुकी हूँ, फार्म हाउस पर करने के लिए बहुत काम होता है वकील साहब। और वैसे भी इस घर में कभी भी खुशहाली नहीं है। नहीं, इसे खुशहाली तो हरगिज नहीं कह सकते, पर एक बात है, कहना तो नहीं चाहिए पर एक खुशहाल घर की देखभाल करने वाली गृहिणी से बनता है। वैसे श्रीमान राठी भी कुछ खास हंसमुख या गृहस्थ व्यक्ति नहीं थी। आपके कहने के ढंग से ऐसा लगता है जैसे उनकी आपस में बनती नहीं। नहीं, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ भी जयदेव राठी रहता हो वो जगह कभी भी खुशहाल नहीं हो सकती। इस विषय पर कुछ देर में चर्चा करेंगे। अभी मैं ऊपर जाकर चीजों का मुआयना करना चाहूँ। वकील साहब, मेरी समझ से मेरी बीवी मिसेस राठी का मंगवाया जो भी सामान ले जाएंगे वो ठीक ही होगा। उनके मंगवाए कुछ कपड़े और छोटी मोटी चीजें ले जाना चाहते हैं क्योंकि कलर बहुत जल्दी में निकल गए। हाँ, लेकिन मैं देखना चाहूंगा आप क्या ले जा रही हैं मिसेस पांडे। और ध्यान रहे, ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगे कि हमारे काम की हो सकती है हमें बताइएगा जरूर। बिल्कुल वकील साहब। ऐसा ऐरा गहरा नथु गहरा अगर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी रसोई में आए और ऐसी जासूसी और टिप्पणी करे तो मुझसे तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। काम तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वो जो डिप्टी इंस्पेक्टर अलाव जलाने के लिए आया था ना, हो सकता है उसी ने इन तौलियों को मैला कर दिया। ये बात मैंने पहले सोची थी। खैर, उनके बारे में ऐसे बातें बनाना ठीक नहीं, खास करके वो जब इतनी जल्दी में घर से निकली होगी। उन्हें घर साफ करने का मौका ही कहाँ मिला होगा। उन्होंने तो आटा गूंथ के रखा था, वो रोटी बनाने वाली होगी। ये फलों की कितनी बुरी हालत है, सब सड़ गया क्या? मुझे लगता है यहाँ जो रखा है ना वो ठीक है मिसेस पांडे, बस एक ही बचा है। इतनी मेहनत के बाद अगर ये सब सड़ जाएगा तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं बाहर रखी अलमारी में उनकी चीजें ले आती हूँ, आप आएंगी मेरे साथ? मुझे उन्हें उठाने में आपकी मदद हो जाएगी। बाप रे बाप, कितनी सर्दी है। वैसे राठी बहुत बंद आदमी था, शायद इसीलिए ये भी किसी से खुलकर नहीं
सुंदर और सज संवर कर रहा करती थी, तब ये मीना से ना हुआ करती थी। हमारे शहर की गुणी गायिकाओं में से एक थी। खैर उस सब तो काफी साल पर यही लेने आई थी क्या? उन्होंने कहा था कि मैं एप्रन भी चाहिए। बड़ी अजीब सी चीज मांगी है। मतलब जेल में एप्रन की क्या जरूरत है? भगवान जाने। हो सकता है स्वाभाविक सा महसूस करने के लिए मांगी हो। कह रही थी कि पास की अलमारी में उनकी शॉल और एप्रन रखा है। हाँ, यहाँ। अरे मैडम, आपको क्या लगता है ये सब उन्होंने किया होगा क्या? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता ये उन्होंने किया होगा। अपनी एप्रन मांगना, अपनी शॉल मांगना, अपने फल की चिंता करना। ये कह रहे थे कि मिसेस राठी के लिए हालात बहुत ही बुरे हैं। वकील साहब कभी भी निंदात्मक तरीके से बात करते हैं। इस बात का तो यकीनन मजाक उड़ाएंगे। ये जागी ही नहीं। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। जयदेव राठी खुद कैसे नहीं जागे जब उनके गले में कोई रस्सी डाल रहा था? कुछ तो गड़बड़ है। कैसा विचित्र तरीका है एक आदमी को मारने का, पूरे साथ सामान और तैयारी के साथ। वकील साहब बाहर जाते हुए कह रहे थे इस केस में बस एक मकसद की कमी है। कोई ऐसा मकसद जो गुस्सा दिखाए या यकायक आवेश। खैर, मुझे तो यहाँ ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं दिए जो अचानक आए दूसरे की ओर इशारा करते हो। यहाँ साफ है। पता नहीं ऊपर उनकी जांच कैसी चल रही होगी। वैसे सच बताओ तो मुझे मिसेस राठी से थोड़ी साफ सफाई की उम्मीद थी। ये चोरी छिपे आए जैसा नहीं लग रहा। जैसे तो मिसेस राठी को शहर के हवालात में बंद करके हम यहाँ आके कोशिश कर रहे हो कि उनका अपना ही घर उनके खिलाफ हो जाए। लेकिन मिसेस शुक्ला, कानून कानून है। वो तो है। वो एक क्विंट बना रही थी। ये तो लॉक के अगर पैटर्न है, सुंदर है ना? पता नहीं वो इसको पूरा बुनने वाली थी या गांठ बांधने वाली थी। इन्हें पता नहीं कि वो इसको पूरा बुनने वाली थी या गांठ बांधने वाली थी। प्रदीप की जलाई आग ने ऊपर कुछ फायदा नहीं किया। अब बाहर कोठा में जाकर चीजों का मुआयना कर लेते। मुझे तो इसमें कुछ अजीब बात नहीं लगी कि जब तक ये लोग अपना सबूत इकट्ठा कर रहे हो तब तक हम छोटी मोटी बातों में अपना समय काट रही हैं। इसमें तो कुछ हंसने वाली बात नहीं है। अरे इस समय उनके दिमाग में अधिक महत्वपूर्ण चीजें घूम रही हैं। आलिया मैडम, इस सिरे को देखिए जिसमें वो काम कर रही थी। बाकी सब कितना बराबर और अच्छा बना है। इसे देखिए कितना गलत सलत है। इसे देखकर तो ऐसा जान पड़ता है जैसे इसे बनाते वक्त उन्हें होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। या क्या करिए मिसेस शुक्ला? देख तो फंदे उधेड़ कर ठीक कर दो। मोटी सिलाई देखकर मेरी उंगलियों को कुछ हो जाता है। उन्हें ठीक के बिना मांगते ही नहीं है। मुझे लगता है हमें चीजों को छूना नहीं चाहिए। बस इस सिरे को ठीक कर दो। पांडे मैडम, आपको क्या लगता है इसे बनाते वक्त वो किस बात को लेकर इतना बेचैन होंगी? मुझे नहीं पता कि वो क्यों इतनी बेचैन थी। मैं भी कभी कभी थकान में बड़ी अजीब सी सिलाई कर लेती हूँ। खैर, मैं ये सब समेट लूँ, वो सब बस आते ही होंगे। कहीं कागज का टुकड़ा और धागा मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। शायद इस अलमारी में हो। ये क्या रखा है? मिसेस शुक्ला, उनके पास कोई पक्षी था क्या? पता नहीं, मैं तो यहाँ काफी समय से आई हूँ। पिछले साल एक आदमी यहाँ सस्ते में कैनरी बेच रहा था। हो सकता है उन्होंने एक खरीदी हो। वो खुद भी तो कितना मजबूत गाती थी। सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि यहाँ कोई पक्षी होगा। मगर हो सकता है कि हो, नहीं तो भला पिंजरा क्यों होता? पता नहीं उसका क्या हुआ। किसी बेली ने पकड़ लिया होगा। नहीं, उनके पास कोई बिल्ली नहीं थी। वो उन लोगों में से है जो बिल्लियों से बेहद डरते हैं। एक बार मेरी बिल्ली उनके घर में आ गई थी तो बड़ा नाराज हुई थी। मुझे तुरंत उसे बाहर ले जाने के लिए कहा था। मेरी बहन मधु भी बिल्कुल ऐसी ही है। अजीब है ना? मिसेस शुक्ला, इसके दरवाजे को देखिए, ये तो टूटा हुआ है। इसका कांच भी निकला हुआ है। ऐसा लगता है किसी ने इसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। आप सही कह रही हैं। काश उन्हें जो सबूत इकट्ठा करना वो जल्दी से मिल जाए। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मुझे इस बात की तसल्ली है कि आप यहाँ मेरे साथ आएंगी।
गलत ना हो जाए, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। बच्चे ना हो तो काम तो कम होता है, लेकिन घर भी सूना सूना रहता है। और राठी पूरा दिन काम पर, घर लौटने पर भी उसका साथ साथ जैसा नहीं, अकेलेपन जैसा। आप जानती थी जैसे राठी को मिसेस पांडे? नहीं, बस एक बार शहर में देखा था। सब कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान थे। हाँ, बहुत अच्छे इंसान थे। शराब नहीं पीते थे, अपनी कहीं बात रखते थे, लेकिन वो एक बहुत कठिन व्यक्ति थे। और उनके साथ पूरा दिन बिताना जैसे तो बर्फीली हवा आपके हड्डियों को काट जाती। मैं समझ सकती हूँ उनकी चिड़िया पालने की चाह, बस ये नहीं समझ पा रही इस चिड़िया के साथ हुआ क्या। हो सकता है किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई हो। आप एक काम करिए मिसेस पांडे, ये अपने साथ ले जाइए, इसमें उनका मन लगा है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। भला इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? और इसके अलावा क्या क्या ले जाया जा सकता है? देखिए, इसमें कुछ सिलाई का सामान हो। और ये लाल डब्बा क्या है? बहुत सुंदर है। हो सकता है सिलाई का सामान इसी में हो। रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ कुछ है। ये सिलाई का सामान नहीं है। पांडे मैडम, ये तो चिड़िया है। इसको देखिए, इसके गर्दन को देखिए, ये तो पूरी तरह से दूसरी तरफ हो। लगता है किसी ने इसकी गर्दन मरोड़ दी। तो क्या आप लोगों ने तय किया कि वो इसे बुनने वाली थी या गांठ बांधने वाली थी? हमें लगता है वो इसकी गांठ बांधने वाली। खैर, मुझे यकीन है कि बहुत दिलचस्प है। क्या चिड़िया उड़ गई? हमें लगता है उसे किसी बिल्ली ने पकड़ लिया। कोई बिल्ली है यहाँ? नहीं तो वो वहमी होती है। आपको तो पता है वो चली जाती है। किसी के बाहर से आने का तो कोई संकेत नहीं है। रस्सी उनकी अपनी थी। चलो ऊपर चलते हैं और एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। मुझे लगता है कि उसका काम है, जिसे पता था राखी अपने कमरे में सोए थे। ये बिल्ली को चिड़िया बहुत पसंद थी। इस सुंदर डब्बे में दफनाने वाली। जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा था और एक लड़का था जिसने बस कुल्हाड़ी उठाई और मेरी आंखों के सामने, अगर उन्होंने मुझे रोका ना होता तो मैं उसे सोचती हूँ कैसा लगता होगा इस घर में रहना बिना बच्चों के। राठी को ये चिड़िया पसंद नहीं होगी, क्योंकि चिड़िया गाती थी, वो भी गाती थी, उसे भी मारा। हमें नहीं पता चिड़िया को किसने मारा। मैं राठी को जानती थी। उस रात इस घर में एक भयंकर घटना घटी थी शुरुआत। एक सोते हुए आदमी के गले में रस्सी डाली, जो उसका गला घोटकर उसकी जान निकाल, जो उसका गला घोटकर उसकी जान निकाल दे। हमें नहीं मालूम चिड़िया को किसने मारा, हमें नहीं मालूम उन्हें किसने मारा, हमें नहीं मालूम। इतने अकेलेपन के बाद एक चिड़िया हो आपके पास जो गाती हो आपके लिए, और फिर एक दिन वो चुप हो जाए हमेशा के लिए, तो क्या बीतेगी आप पर उस भयानक चुप्पी से? मुझे एहसास है उस चुप्पी का। जब मैंने अपने 2 साल के बच्चे को खोया था, उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। आपको क्या लगता है उन्हें कितना समय लगेगा सबूत ढूंढने में? मुझे एहसास है उस चुप्पी का, लेकिन कानून अपराधी को उसके अपराध की सजा तो देगा। काश आपने मीना को देखा होता जब वो सफेद कपड़ों में मंच पर अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरती थी। मुझे यहाँ आना चाहिए था, बार बार आना चाहिए था। मेरा यहाँ ना आना एक अपराध था, एक अपराध। उसकी सजा कौन देगा मुझे? हमें ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। मुझे समझना चाहिए था उसे मेरी जरूरत है। हम औरतें अपने अपने दायरों में एक जैसी परिस्थितियों से जिंदगी में जूझती रहती हैं, अलग अलग तरह की एक जैसी परिस्थितियां। अगर मैं आपकी जगह होती ना मिसेस पांडे, तो उन्हें उनके फलों की बुरी हालत के बारे में कभी ना बताती। और विश्वास दिलाना कि उनके फल बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा, इन आदमी
हमारी बात नहीं सुनी, नहीं तो वो हंसते हम। एक छोटी सी चीज, एक मरी हुई चिड़िया के ऊपर इतना बड़ा बवाल, जैसे कि इसका उससे कोई संबंध है ना? शायद नहीं, सिर्फ एक मकसद को छोड़कर बाकी सब पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन आप तो जानते ही हैं न्यायाधीश महोदय का रवैया जब महिलाओं की बात आती है। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो या कोई कहानी या कोई गवाह जो इस अजीब ढंग से की गई हत्या को समझे। अब क्या कहूँ, मैंने तो चारों तरफ टीम लगा रखी है और बाहर काफी ठंड भी है ना। मैं कुछ देर अकेले ठहरना चाहता हूँ यहाँ। क्या तुम फरदीन को मेरे पास भेज सकते हो? मैं सभी चीजों का मुआयना फिर से करना चाहता हूँ। क्या आप देखना चाहेंगे मिसेस पांडे क्या क्या लेकर जाना चाहती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता वो जो चीजें ले जा रही हैं उससे हमें या किसी को कोई खतरा हो सकता है। हम पांडे मैडम की उठाई चीजों का मुआयना थोड़ी ना करेंगे हम। जहां तक उनका संबंध है, इंस्पेक्टर की बीवी है, एक मायने में कानून की बीवी होगी, नहीं? तो इस तरह से सोचा है पांडे मैडम? नहीं, उस तरह से तो हरगिज नहीं। अरे एक मिनट यहाँ आइए जरा। मेरे ख्याल से इन खिड़कियों को एक नजर देख लेना चाहिए। अरे खिड़कियां! चलिए शुक्ला जी, बाहर चलते हैं। चलो पांडे जी, ये तो पता चला कि वो स्पीड को भूल नहीं रही थी। वो तो क्या कहते हैं आप लोग? हम उसे गांठ बांधना कहते हैं वकील साहब। समुद्र में फंसे, उन्हें तो बहुत बड़ी भूख लग रही से। भूख के मरने भी लागने से कुछ खाने मिल जाता तो मजा आ जाता। भाई राशन पानी कतनी खत्म हो गया के? सारा राशन खत्म हो रहा है, खाना दाना नहीं बच रहा। एक बार देख ले, हो सके डब्बा चने बच रहे हो? कुछ नहीं बच रहा, सारे डब्बा खाली हैं। मरने से कसूती भूख लागने से चाहे कुछ भी मिल जाए खाने। कुछ भी खाने का टाइम जा लिया, तो किसी को भी खाने का टाइम आ रहा है। किसी को भी खान से तेरा मतलब? मन में तेरा कोई नहीं दिख रहा। अरे यार समझा कर, हम तीनों में से किसी एक को खाना पड़ेगा। फिर ठीक है भाई, चलो खाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो खाते हैं। प्रियो के बाढ़ में गिर गए, चलो खाते हैं लगा रखी है। हम तीनों दुकर खा तो कैसे हैं? हम तीनों में से किसी एक को तो यहाँ कहनी पड़ेगी, अपो बात ना लोग खाना खा लो। लेकिन यह बात करेगा पूर्ण करेगा। अपनी वफादारी और इंसानियत दिखाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल रहा किसी को। मन में तेरा कोई तीतर बटेर नहीं दिख रही। माफ करना भाइयों, मन में यह कहने में कोई दिक्कत थोड़ी से अक में निहायती बेशरम, स्वार्थी और एक नंबर का मतलब इंसान चलो। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता तब भी अपना खाना किसी ने नहीं दिया करता। यह तो बड़ी दिक्कत की बात है। मंगाकर सर, इस मुश्किल घड़ी में या ताश के पत्ते ही हमारा फैसला करेंगे। हाँ, यो ठीक रहेगा। मैं इस ताश की गड्डी में के 3 पत्ते निकालूंगा। जिसका पत्ता सबसे छोटा आया उसने बाकी दोनों खा लेंगे। यो तो जुआ है। मेरा बाबू क्या करता, जुआ खेलना बहुत बड़ी बात है। और जयतन ने पत्ता निकालने में गलती कर दी थे। जब हमने मेरे को यकीन नहीं तो मैं करे कैसा कुछ हूँ? नहीं, कोई और तरीका सोचना चाहिए। ताश खेलना एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और जितना हो सके बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तन में हम दोनों में से किसी एक ने खान में कोई बुराई नहीं दिख रही, लेकिन ताश खेलना वोट डाल के फैसला करा। कसूता आइडिया से आप दोनों गठबंधन की पार्टी बनाएंगे, जिससे वोटिंग के साथ जाएगी। मैं ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने मैं नहीं मानता, जो बहुत पुराना और कथित उसी तरीका से जी और कोई तरीका विद्या कोन्या। और जब तुम्हें डिक्टेटरशिप पसंद है तो मुझे हिटलर बनने में भी परेशानी कोन्या। मैं यहाँ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। चुनाव मंजूर है कि नहीं? ठीक है, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएगा।
ठीक है, अपना वोट भी कोई दूसरे को नहीं बताएगा। अपनी अपनी पर्ची पे एक आदमी का नाम लिखकर इस टोपी में डाल देंगे। एक बावेगा मजा। एक मिनट, चुनाव से पहले कैंपेनिंग भी होनी चाहिए। हर एक सभ्य देश में चुनाव से पहले हर एक उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने का मौका मिले से। ठीक से, जो तेरी जाए मर्जी से। तो ठीक से जल्दी कर। तो इसी के साथ कैंपेनिंग शुरू हुआ है। सबसे पहले कौन सा बोलेगा? मेरे ख्याल से किसने बोलना चाहिए? मैं सबसे बाद में बोलूंगा, मुझे स्टेज फीवर का थोड़ा डर है। कैंपेनिंग का आइडिया भी तो तेरा था ने। अभी चलो और सभ्य लोगों की जरिए इलेक्शन लड़ो। ठीक से, आप लोगों की आए मर्जी से तो भाइयों और भाई भूमिका बांधने की जरूरत को ना, सीधा मुद्दे की बात पे आ। आज हम सब यहाँ खाने की समस्या को लेकर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूं सु अगर मन में खाने का विचार अपने मन से निकाल दे। मेरी एक बहू से और 2 बालक से जाड़े में बगीचे में बैठ के हम सूरज की धीमी धीमी ताप का मजा उठाया करें। मेरी बहू कुर्सी पे बैठकर स्वेटर बुनिया करे और मैं शामी बैठकर चाय का लुफ्त उठाया करूं और बालक आपस में झूला झूला करें। मेरे दयावान दोस्तों, क्या आप ये दृश्य देख रहे हो? कितना हंसता खेलता परिवार से मन में यकीन से अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। हद कर रहे थे मेरे यार। यूं हमारी जिंदगी और मौत का सवाल थे कि सेंटी मार से कुछ ना हो और तेरे बालक तेरे बिना भी झूला झूल रहे थे। हमने अपने भविष्य की ताई घड़ी मेहनत नहीं करी, अपने सपने भी पूरे कभी नहीं किए। तो मन ने एक मौका दे दो, मैं आप सबने कुछ बढ़ के दिखाऊंगा। थोड़ा ऊंचा बोल। मैं आप सबने कुछ बढ़ के दिखाऊंगा। अरे तन्ने तेरी करियर की चिंता लग रही है। तू सिर्फ अपने बारे में ही सोच। हमने खाना चाहिए, खाना। भूख लगी है, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो। मेरी क्या ऐसा बर्ताव मत करो। ओ मेरे प्यारे बरातियों, मजा। मैं भाषण वासन में विश्वास नहीं करता और ना ही मैं रोना धोना मचाऊंगा। मैंने बचपन ताई खाना बनाने का कसूता शौक से खान का नहीं, ना 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 मन ने ते भूखे नहीं लगती। किसी चिड़िया कितना पेट से कई साल पहले रोटी का 1-2 टुकड़ा तोड़कर खा लिया करता हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन अब कुछ नहीं खाता। लेकिन खाना बनाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। एक अच्छी रसोई की तरह खाना बनाना, उसे परोसना और दूसरों को खाते देखने में मुझे बहुत घना मजा आता है। बस बदले में इनाम बनी चाहिए। और दोस्तों, जानता जानता एक बात और बता दूं, अगर नॉनवेज काटना और उसे बनाना मेरी खास विशेषता है और मेरे हाथ की नॉनवेज चटनी बस मन इतना ही कहना था। शाबाश छोरे, क्या हुई ना वो बात। बस आपकी बारी, कोई कसर मत छोड़ियो। भूखे सिरो जयराम जी की। भाई जयराम जी की, जयराम जी की। तो मैं बहुत कम बोलूंगा। सबसे पहले तो आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं से, आप अपना फैसला खुद करें। मैं तो ठहरे नौकर आदमी और आपका हुक्म सर आखा पे। खान पीन के मामले में तो मैं कभी नखरे नहीं करता, जैसा मिल जाए उसा ही खा लूं। मेरा कुछ हजम ही तो नहीं होता, कितना खा लूं, शरीर को लगता ही नहीं। तो बचपन से ही थोड़ा कमजोर रहा था। मेरी 2 पकड़ी लड़ाई थी, एक गुर्दा नकली और एक टांग दूसरी टांग तो थोड़ी छोटी सी। इस समय जो सारी बात छुपाने का तो मतलब ही बच रहा। लेकिन मैं एक स्वार्थी नेता नहीं हूं। जब आपने मुझे नहीं चुना तो मैं दूसरे आदमी ने वह जो मांगेगा वह दे दूंगा, चाहे वह लेग पीस हो, उंगलियां, बेचा। मैं तो बचे कुचे में ही निकलाम रहूंगा। ओ बेटे, कति लठ गाड़ दिया। ये चटर बटर मत करो और फैसले की बात करो। अरे महाराज नेता जिंदाबाद। बॉस, मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हो गया सर। ये बोगी तसल्ली। आपका भाषण तो अच्छा था। तो इसी के साथ कैंपेनिंग खत्म हुआ है, करीब हम वोटिंग शुरू करेंगे।
सौभाग्य से ये हमने गिनती शुरू कर देनी चाहिए। गिनती का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया और पेट में चूहे। ये बात सब ठीक तो है ना? जल्दी बता कौन से? यह चुनाव हमने रद्द करना पड़ेगा। क्यों? भूख लगी थी भाई। टोपी में 4-25 हैं। मैंने तो पढ़िया ही गई थी, ये डेमोक्रेसी बहुत पुराना तरीका है, आजकल कामयाब नहीं होगा। इब क्या करें? असेंबली है गोभी, ईब तो किसी एक को नॉमिनेट करना पड़ेगा। कौन करेगा नॉमिनेट? मेरे अलावा किसी और में हिम्मत है नॉमिनेट करने की? जिसका मनने रहता वही हुआ। बिल्कुल नहीं, तू मनने क्या बावली भूत समझ रहे से क्या? तू हमारा खत्म बन जा। इलेक्शन कामयाबी हो गया, डिक्टेटरशिप मंजूर नहीं, अब तुम्हारा सब छोड़ दे। इस मुसीबत की घड़ी में केवल एक आदमी ही हमारी मदद कर सकता है। एक ऐसा आदमी जो अपनी श्रद्धा और भक्ति से अपने आप में हम भूखा के सामने पेश करे और हमारी भूख शांत करे। इतिहास का वास है, जब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक स्वयं सेवक ही पार लगा सकते हैं। मैं तेरी बात में नहीं आ डाला। एक बेस सुनते ले के कह रहा से कोई भी आदमी अपने दोस्तों के लिए जान तक दे डालने जैसी अद्भुत गुण चाह के भी नहीं छुपा सकता। मेरे भाई जी से दोस्त पहली नजर में बिछान गया था कि तुझमें कुछ खास बात है। मनने से इससे भला आदमी अपनी पूरी जिंदगी में देखा। हमने खुशी होनी चाहिए कि हमारे दोस्त ने कुछ कर दिखाने का मौका मिल गया। मैंने ना कुछ करना ना कुछ दिखाना। कि तू थोड़ी देर पहले करने ना कही थी तू कुछ कर दिखाना चाहे से। नहीं, तू अपने भूखे दोस्तों ने यूं कर देगा? हाँ मतलब तू आत्म बलिदान नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। तन्ने शर्म नहीं आती? मैंने महान बनने का कोई शौक नहीं। मैं तो सोच रहा था कि तू सच्चा देशभक्त और आशावादी आदमी से, पर तेरे कैसा मक्कार और स्वार्थी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे से दोबारा बात मत करना जयराम जी की। बड़े दुख की बात है। यह बात तो साफ जाहिर है कि गौरव और सम्मान जैसी बातें तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। खैर को बात ना, कोई और तरीका सोचते हैं। हाँ, मरने बस न्याय चाहिए, न कम न ज्यादा। और मन में खाना चाहिए पेट भर के, न कम न ज्यादा। आ जाओ, बैठ के न्याय करेंगे। फैसला मुश्किल से पर करना तो पड़ेगा। मरने से भी बात ना करनी। मेरे भूखे दोस्त, एक बात बता, तेरी माँ जीवे से मर गई। मन नहीं बेरा बॉस, थारी माँ मर ली। मेरी माँ तो मैंने जन्म देते ही मर ली थी। एक तरफ मैं पैदा होया और दूसरी तरफ अनाथ हो लिया। मैं भी आपके साथ आगा सु बॉस, समुद्र के बीच बैठ गया सु। झूठ नहीं बोलूंगा, पैदा होने पहले ही अनाथ हो गया। आपकी तो माँ होगी ना? मेरी एक माँ है, बेचारी ने मेरी मरण की खबर सुन के रो रो के आंख सुझा दी होगी। तो न्याय की बात करा, तो जब पहले थे अनाथ से उन्हें मार के खाना तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मेरे न्याय प्रिय दोस्त, हम दोनों तो पहले थे अनाथ हैं। अरे एक अनाथ ने मार के खाना न्याय नहीं हो सकता। लेकिन देख भाई, बात कभी पानी की तरह साफ से। तेरी माँ जीवे से और तन ने जीवन के सारे सुख भोग लिए से। अब दुनिया के सारे अनाथों का ऋण चुकाने का टाइम आ गया से। हमने तो न्यू ये नहीं बेरा कि घर की ओर से, माँ की ओर से और माँ के हाथ का खाना की ओर से। हो सके मेरी माँ भी मर गई होगी। बहुत बीमार थी बेचारी। तेरा कोई ईमान धर्म है कि नहीं? क्यों साबित करे इस बात नहीं? हाँ, साबित करके बता। जब मैं घर से आया तो बहुत बीमार थी बेचारी, सारा दिन खाट में पड़ी रहा करती। आजकल क्या कितनी बीमारी चल रही है, टीबी, हैजा, चेचक, दमा, बीड़ी भी पिया करती मेरी माँ। भगवान तेरी माँ ने लंबी उम्र दे, कुछ नहीं हुआ होगा। बट्टी कट्टी बेटी टीवी पर सास भी कदर बहुत देखती होगी। तुमने वो बात सुनी? बात मत बदल, तू किसा आदमी से मारी दुख भरी कहानी का तुझ पे कोई असर नहीं। बचाओ बचाओ। हाँ, हमारी तरफ को तैरता हुआ रहता है। अरे बॉस, ये तो एक हाथ से ही तैर रहे थे और दूसरा हाथ से कुछ पकड़ रहे थे। हो सके ये हमारे कहीं खाने का सामान लाया होगा।
2 दिन तक कुछ नहीं खाया। अरे आप, यूं तो कमाल हो गया। आप इसमें पिछाड़ो तो। मैं पिछले 10 साल से इनके घर चिट्ठी पहुंचा रहा हूं। भगवान की लीला भी न्यारी है। देखो फिर समंदर के बीच आके भेंट हुई और इत्तेफाक के मेरे दोहरे आपके तारवी से। मेरा घर? हाँ, मैं आपके घर जा रहा था ये 8 दिन, तो भी जोर से बारिश हुई और मैं पानी में बहता बहता समंदर में पहुंच गया। बहुत अच्छा होया अपने तैरना आगे से। देखो किसका से? आपकी यह वर्दी असली से? कति असली से, वो थोड़ी गीली से, पानी में जाती भीगी। अरे क्यों है यार? दोस्तों, बड़े दुख की बात है, मेरी मां मरी। दोस्तों, जैसे आपने देखा, मैं भी अनाथ हूँ और बेशक नया अनाथ हूँ, पर अनाथ तो अनाथ हो से मेरा हो चाहे पुराना। अब हमें किसको खाना चाहिए वाली बात वापस छेड़नी चाहिए। मैं नहीं मानता इस बात में। मन्ना या तेरी और इस जाति की मिली भगत दिक्कत है। आप एक सरकारी मुलाजिम पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मन ने अपनी जान पे खेल के अपनी ड्यूटी पूरी करी से। कितने पीछे दिए थे तेरे थे? मन में चला के तुम दोनों स्कूल में गैर पढ़ा करते। बिना सर और पूछ की बात ना कर, तू बेशक इजाजत दे पूछ ले। ठीक से, तो जाए बात सच निकली तो हम तुमने बिना एक और मौका दिए खा लेंगे। नहीं तो हम ये लेटर बॉक्स में खा लेंगे। मन ने खाने के बाद क्या करो सो? मैं तो इबे आया हूँ और मैं तो भीज के आया हूँ। इसलिए तो नया और भी बढ़िया पत्ती ताजा। बॉस, क्यों ना हम ये दोनों ने खा ले? एक ने फ्राई करके और दूसरे ने सलाद और प्याज भी डाल के। रुको, हो सके जो बेचारा भी ना तुम शायद पूछ लेना चाहिए। आपको आपका तार मिल गया, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। अब मैं चालू हूँ जयरामी की। अरे रुको, इनको बता के जाओ मैं सच में अनाथ हूँ। दोस्तों, अब हम सारे की परिस्थिति एक जैसी है, हम सब अनाथ है। तू एक काम कर, खाने का टेबल लगा। ठीक है बॉस। खाने का टेबल? लेकिन खाना कितने? मन्ना न्यायीकरण के और भी तरीके अमल हैं। मतलब बॉस पतीला लाओ क्या? हम सब अनाथ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब बराबर नहीं हैं। ये देखना यह है कि हमारे माँ बाप कौन थे। मारे माँ बाप थे। अरे पर तेरा बाप क्या करता? बॉस बेलन लाओ। मेरा बाप दफ्तर जाया करता, प्राइवेट कंपनी में। माफ करना जी, मैं अपना रसीद भूल गया। तो तेरा बाप तब तो नहीं करता। मन्ना यही उम्मीद थी। तुमने तेरा से मेरा बाप कौन था? नहीं, बहुत सीधा आदमी, एक अनपढ़ लकड़हारा। इसका तो बाप था ही नहीं। इसकी माँ तो गरीबी और भूखमरी से प्रेग्नेंट हो गई थी। जब तेरा बाप एयर कंडीशनर दफ्तर में बैठ के कुर्सी बड़ा करता, उस समय मेरा बाप जंगला में घूम घूम के लकड़ी काटने जाया करता और उसी लकड़ी को पेपर बन के फैक्ट्री में भेजा करता और उसी लकड़ी का पेपर तेरे बाप के दफ्तर में जाया करता, जिस पर तेरा बाप साइन कर करके उन्हें खराब कर दिया करता और उसी पेपर की रद्दी ने बेच के इसकी माँ अपना गुजारा चलाया करती। तो मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बातों में मेरी क्या गलती से? न्याय करते समय केवल वर्तमान ही नहीं अतीत को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अतीत का न्याय यही कहता है कि तुम्हें काट के खा लेना चाहिए। बचाओ। ये भगवान ये क्यों होया? बॉस, ये तो कोई बटलर लागे थे। ये तो जरूर खाना संभाले आया होगा। आप कुछ खाने का सामान ले आए हो? नहीं, आपके पास तो रोटी का टुकड़ा पड़ा हो तो दे दो। 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। अरे मालिक, आप ये तो कमाल हो गया। आप इसमें पहचानो सो? मैं पिछले 50 साल से ये नौकरी कर रहा हूँ। भगवान की लीला न्यारी है। देखो कि समंदर के बीच में आगे भेंट हुई। कौन हो तुम? आपने मेरे को पहचाना नहीं मालिक? आप बहुत छोटे से थे। मैंने अपनी गोदी में खिलाया था आपको। मैं आपको घुड़सवारी भी सिखाया करता। चले जाओ। बस एक बार गले से लगा लो मालिक,
महल में आपके पिताजी और माताजी परेशान थे। जब हमें पता चला कि आपका जहाज डूब गया तो मेरे पर रहा नहीं गया। मैं भी कूद गया समुद्र में। देखो मेरी किस्मत, आप मैंने मिल ही गए। मालिक, जहाँ आप वहीं मैं। राम सिंह, तुम किसी वक्त नीचे कूदो और डूब जाओ। जो आ गया मालिक। अरे जो तो डूब गया। तो मैं कह रहा था कि मैं करते समय मकान तुम महल में लिया करते और तुमने घुड़सवारी भी सीखी थी। घुड़सवारी? मेरा बाप के पास घोड़ा तक है, कुत्ता तक नहीं था। तुम आगे तेरे बचपन की याद आ गई। लेकिन वो बटलर कौन? अरे तुमने किसी बटलर को देखा? बिल्कुल नहीं। ये कहूँ तेरा खाम खा तो बहम हो जाता है। बावला हो गया था तू। एक लापरवाह आदमी से और तेरे जैसे आदमी ने हम जिसे रोका के हमारे करना चाहिए। जैसे इंसान को समाज से बाहर निकाल करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँ कि खाए लेना चाहिए। खाने का टेबल लगा दिया। टेबल का भी तैयार थे बस। एक मिनट भैया जी, मैंने जहर खाया सर। मेरा मशीन किससे है? मेरा यकीन मानो, मरने खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अबे शुरू कर। मैंने सोचा मेरा वर्ड से आपको बता दूं। छोड़ इसमें, लचक को ले गया। ठीक से बात, जहर का असर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा और असर खत्म होते ही मरने खा लेना। एक दिन तो इंतजार कर लो। वो कहावत है ना, आज का खाना कल खा लिए, कल का खाना परसों। कल में राशन खत्म हो जाएगा तो क्या खाएगा नंदो? एक तो घंटा तो दे दो। वो कहावत गलत कही तुमने। कहावत से कल का खाना आज खा लीजिए, आज का खाना अब, पल में राशन सड़ जाएगा, फिर खाएगा कब? इसमें शुरू कर। तो ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल। आप आत्म बलिदान के बारे में कुछ कह रहे थे। आत्म बलिदान एक महान विश्वास है। और बताओ। और क्या बताऊं? अपने आप उन्हें समर्पित करने की तत्परता है। मैं आत्म बलिदान करूंगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुझे मुझ पर यकीन नहीं था। मैं नादान था, आप भी कह रहे थे। देर है दुरुस्त आई। मैंने आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मतलब तेरे भीतर एक बढ़िया इंसान बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक साधारण आदमी की बजाय एक नए और बेहतर इंसान को खाना चाहिए। वैसे मजाक तो नहीं कर रहे हो, सच में खाओगे? मजाक का सवाल है, पैदा नहीं होता। खुद को अर्पित करके मरने कदों की संतुष्टि और मुक्ति का एहसास हो रहा है। तेरी एक हड्डी हमें तेरी महानता की याद दिलाएगी। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से मैं एक असली आदमी बन पाया। वो बात ना कर रहे शुरू कर। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, बेहतर आदमी हूँ, आत्म बलिदान करूंगा, अच्छा आदमी हूँ। मैं तो ये सब देखा नहीं जा रहा। एक इंसान इतना क्यों कर बदल गया कि अपने दोस्तों की तरह अपनी बलि देने तैयार हो गया। बॉस, मैं भी अपने भीतर एक नया इंसान उभरते देख रहा हूँ। दोस्त, बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया से तन्ने, बहुत बड़ा। बेवकूफ, वो तैयार हो चुका है। नहीं बॉस, मन ने भी अपना आत्म सम्मान पा लिया से। और वैसे भी एक कमजोर ने खाना न्याय नहीं हो सकता और ताकतवर ने खाना भी न्याय नहीं हो सकता। इसलिए आप दोनों मिलकर मन्ने खा लो और इस पापी संसार से मुक्त करो मन्ने। बकवास बंद कर, चक्कू उठा और इसका गला काट। नहीं बॉस, एक मन्ने लागे से कि आप दोनों मिलके आपको खा लें। और वैसे भी इसने खा लेंगे तो खाना हफ्ते 2 हफ्ते में फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने खाएंगे तो 2 महीने तक राशन खत्म नहीं होगा। लेकिन फैसला तो मंडे खाने का हुआ है ना, नहीं हो मौका हाथ नहीं जाने दूंगा। नहीं, या तो तुम दोनों मिलकर मन्ने खाओ या आप दोनों मिलके बॉस ने खावांगे। मेरी तरफ से तू आजाद से। आजाद, आजादी का कोई मतलब नहीं हो वैसे। केवल सच्ची आजादी ही आजादी हो है। लेकिन सच्ची आजादी मिलेगी किन? जवाब आसान से। सच्ची आजादी वही मिलेगी
ये झूठी आजादी नहीं मिलती। आप कर रखा था बलिदान की नजर में देख के मेरा दिल भरा ऐसे, मेरा भी हृदय परिवर्तन हो गया सर। तू ठीक कह रहा था, तो हम दोनों मिलकर मन्ना खा लो और इस पापी संसार से मुक्त करो। देखिए ना, सबसे पहले तो मैं मारा था, मन्ना खा लो। नहीं, मन्ने खा लो। अरे यो क्या वर्ड का कितनी मन्ना खा लो लगा रखी से। हम तीनों को कर खा सके कैसे? दोस्तों, आज हमारे सामने एक बड़ी अजीब समस्या खड़ी हुई सर। हम तीनों भूखे थे और तीनों अपने आप में अर्पित करना चाहते हैं। मनवाके से इस मुश्किल घड़ी में यह ताश के पत्ते ही हमारा फैसला करेंगे।